gentlemen, boys and girls, today we have with us at Filmy Beat someone who is a disruptor. He knows the nature of the game. You might have seen him in roadies, you might have seen him on Skulls and Roses, you might have seen him on reality shows. But today I'm going to be talking to him as a person who is all set to disrupt the market because he is all set to take the audience on a roller coaster ride. There's no price for guessing that I'm talking about the supremely talented, the one who redefined our childhood, the one whom we wanted to always see on television, the one whom we were always scared कि अब हमें डांट ना पड़ जाए. We are talking about the one and only Rajiv Lakshman sir. Hi Rajiv sir, I hope you are doing well. We welcome I'm you on Film Beat. well, I'm humbled and flattered by your introduction. Thank you so much for your kind words. Yeah. We are so excited to have you with us at Filmy Beat. So the good news is, first I have to congratulate you because you are all set to take, as I mentioned, the viewers on a roller coaster ride. And it's not only the viewers related to television and OTT, but overall, and you have a plan which we were discussing to take on the world, the global world. As you have joined Infinitive Network Solution as the group head. So what is that thing? Like, I believe something was all as for humans and individuals, we have something on a bucket list. So it was something which was on your bucket list that you're finally taking it off. Yes, I would say I've always been very passionate about finding, identifying, nurturing, and growing talented people. I'm a big believer in Indian youth, and I think with the right guidance and support, there is absolutely no reason that we cannot dominate the world. We are awesome, the youth. एंड मैं बहुत टाइम से सोच रहा था मैं क्या करूं। मेरे पास मैं कंपनी में आई हैड माय ओन कंपनी। उससे मैं ओटीटी एंड टीवी सीरियल्स वगैरह मैं प्रोड्यूस करता था एंड क्रिएट करता था। बट उससे वो एक मेरे लिए सेटिस्फाइंग नहीं था, राइट? As it was my entrepreneurial venture, but I wasn't satisfied. So I started wondering what should I do? I have to contribute to the youth in some way. Not because I want to stay relevant. It's because I that's who I am. That's what I do. So मैंने एक कोर्स क्रिएट किया रियलिटी टीवी के ऊपर। ऐसा कोई कोर्स ही नहीं है दुनिया में, कोई कोर्स ही नहीं है रियलिटी शो सीखने के लिए। लोग आते हैं और जो पीछे वाले बताते हैं वो सो ग्रो होना इंडिया में रियलिटी शोज स्लो है। ग्लोबली इट्स अ बूमिंग बिजनेस, बट इंडियन कॉन्सेप्ट्स डोंट travel out. That's because of lack of training. So I decided that is one area that I want to contribute and help people train in being reality show professionals. On the other hand, I started a podcast called Mencyclopedia, where I was talking to young men of India, talking about many things, mental health issues, dating, relationships, career, and all those things. That was again my attempt to contribute to their life in some manner. मैंने एक MCN of course had fascinate me. MCN is a multi channel network जो यूट्यूब के साथ काम करता है और क्रिएटर्स को ग्रो करता है। तो वो मैंने उसके लिए एक बिजनेस प्लान भी बनाया था। उसका नाम रखा था मैंने कॉन्वर्स। बट वो हुआ नहीं क्योंकि उसके लिए बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं जो मेरे पास नहीं था। अ, जब ये इन्फिनिटम से मेरी मुलाकात हुई तब जॉब की बात नहीं हुई थी, और जॉब मेरे मेरे जहन में था ही नहीं। एक बार आप खुद के बॉस बन जाते हो, खुद का कंपनी होते हो, तो जॉब करना तुम्हारे दिमाग में होता ही नहीं है। यू नो, I'd rather create my own thing than join a company that already exists. However, I realized after meeting Infinitum that this is where I can make an impact. I can make a difference. This is where I can connect to young people, young creators, and be a partner in their ambitions and dreams. This is where I can be effective. So, in a very counterintuitive way, I let go of my entrepreneurial and business aspirations and have partnered with Infinitum Solutions to grow the economy, the creative economy. You're all set to showcase your creative side once again, isn't it? Actually, it's not my creative side. It is now my team leading and business side. I want every creator to build their own creativity, right? I won't tell them kya kar. I'll guide them.
कि इस तरह से करोगे तो ज्यादा व्यूअरशिप आ सकती है, इस तरह से करोगे तो ब्रांड्स अट्रैक्ट कर सकते हो, इस तरह के कीवर्ड्स आप यूज करेंगे, इस तरह के थंबनेल्स और वगैरह करेंगे, या इस क्रॉस चैनल प्रमोशन में आप हिस्सा लेंगे, या इन गेस्ट को आप बुलाएंगे, तो आपका फुटप्रिंट बढ़ेगा, आपका ग्रोथ बढ़ेगा। ये मैं उनको समझाऊंगा, उनको हेल्प करूंगा, उनको गाइड करूंगा, उनको एआई टूल्स दूंगा कि आप इस तरीके से अपना कंटेंट कैलेंडर बना सकते हैं, इस तरीके से आप अपना स्क्रिप्ट या स्ट्रक्चर जो है आप प्लान कर सकते हैं एआई के थ्रू। एआई टूल्स लेके आप फेसलेस चीज़ें भी कर सकते हैं, टेक्स्ट टू वीडियो, या एनहेंस योर cutaways, a lot of things that a lot of, especially tier 2, tier 3 people, they don't have it. They don't have the knowledge or the tools or the training. That is where I come in. I will not tell them what to do. I will tell them how to do it better. ये मेरा काम। That's amazing to know. So, talking about the Indian reality show space, like as you mentioned, there are always spaces, there are holes which, as a content creator, as a market disruptor, you're looking to fill. Like in India, if we talk about reality shows, we don't have our own homegrown franchising. We are heavily dependent on global IPs. So, what's your take on it? Can India produce a show? And I don't know, I'm not only talking in terms of Indian television, I'm talking about the overall entertainment sector. It can be for OTT, it can be for any entertainment platform. Because India has a potential because we are supremely talented, we are creative, but somehow our properties have not been able to grow into a global franchise. What's your take on it, sir? See, I think as a country, not as a country, but as an Hmm, industry, hmm, we're very risk averse. hmm, ओके, रिस्क लेने से हमारी फटती है। बिल्कुल। हम ज्यादा पैसा खर्च के एक इंटरनेशनल फॉर्मेट ले आएंगे, कहीं से सलमान खान को ले आएंगे या अमिताभ बच्चन को ले आएंगे कि यार अब हमने अपना काम कर दिया है, अब ये तो हिट होगा ही होगा, हम्म। कहीं और हिट हो चुका है। सो ये रिस्क अवर्स है, और लोग लोग देखना पसंद भी करते हैं, पर अपना इंडियन वॉइसेस डेवलप नहीं हो रहे, इंडियन वॉइसेस ग्लोबली ट्रैवल नहीं कर रहे। अ, यहाँ पे दैट्स व्हाई इवन इवन these टीवी channels and OTTs look at digital content creators to get fresh voices. हम्म, यू नो, वहां पे भी कुछ गलतियां हैं, वो उन्हें कास्ट कर देते हैं रियलिटी शो में। ऐसा नहीं है, जिन जिन चीज के लिए वो जाने जाते हैं, जिन चीज में वो माहिर हैं, उनको उसी एरिया में और एनहांस करना चाहिए, और ये वहां जाएगा, जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ट्रेडिशनल स्टोरी टेलिंग प्लेटफॉर्म्स और टेक्निक्स बदल रहे हैं, राइट? हम्म, ऐसा हम्म, नहीं है कि यार मेरे चैनल पे आप आओगे ही आओगे, मेरे प्लेटफॉर्म पे आप सब्सक्रिप्शन लोगे तो सब चीज मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक आदमी अगर नेटफ्लिक्स देखता है तो यूट्यूब भी देखता है, वो इंस्टाग्राम पे भी होता है। अब अगर टाइम स्पेंड की बात करेंगे तो सोशल मीडिया एंड यूट्यूब फार एक्सीड OTT. It's bound to change, where you say, instead of trying to pull people to come to my platform, let me go where they are, right? And that is where definitely. the power of Indian creators, content creators, digital creators, that is where it becomes very, very powerful. Definitely agree with you. Since you talked about time span and duration, the thing is, if you see today's time, पहले था कि you used to make someone sit for 3 hours, that person will be more than happy to watch a film. But in today's time, हम movies जो देखते हैं वो Instagram रील के थ्रू देखते हैं। YouTube Shorts पे कोई हमें सीन अच्छा लग गया या Instagram रील पे कोई लग गया, the audience retention span has reduced. अब 2 मिनट में अगर मैं पसंद आ गया, 20 मिनट में पसंद आ गया तो हम देखेंगे, अदरवाइज आई एम नॉट गोइंग टू सिट और एनीबडी इज नॉट गोइंग टू सिट द एंटायर मूवी. So what's Hmm. your take on it? How you are going to tap into this thing, ensuring, because ultimately the job of a creator is also to ensure that his content is doesn't also have a maximum audience, but also वो एक ड्यूरेशन जो है वो, अगर आपने 1 घंटे का कंटेंट बनाया एटलीस्ट देखे तो लोग. तो हाउ Hmm. यू आर टैकलिंग दिस थिंग? See, मुझे लगता है कि इंडियन ऑडियंसेस हम्म, ग्लोबली आर वेरी डिसर्निंग। ठीक है, हम्म, उनको वैल्यू चाहिए अपने टाइम का। हम्म, ठीक है, पहले हम कहते थे बॉलीवुड इज अ रिलीजन इन द कंट्री, हम्म, हर हफ्ते वीकेंड पे लोग जाते, दैट्स बिकॉज दे डिडंट हैव ऑप्शंस, ऑप्शन चाह. राइट? अभी उनके पास है, तो वहां उसे compete करोगे तो मुश्किल हो जाएगा। आप समझ रहे हो? ऐसा नहीं है कि लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट चलता नहीं है, एक एक घंटे के पॉडकास्ट होते हैं, कॉमेडी शोज वगैरह होते हैं, राइट? ऐसा नहीं है, पर आई वुड से
एक क्रिएटर्स को ये नहीं देखना चाहिए कि मेरे को शॉर्ट करना चाहिए, मीडियम करना चाहिए या लॉन्ग करना चाहिए। अगर क्रिएटर्स ये देखे कि मैं कौन हूँ और मेरी आवाज क्या है, उसका यूनिकनेस क्या है, और वो यूनिकनेस मैं किस ऑडियंस तक पहुंचा रहा हूँ, ये ना क्रिएटिव टेक्निक्स बोल लीजिए, राइट। अगर बोले हाँ यार मैं हूँ, मैं तो स्टार हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कैमरा लगा दूंगा और जाके मैं किसी की एक्टिंग कर लूंगा तो हो जाएगा, हो सकता है कोई एक का दुक्का वायरल चले जाए, पर आप सस्टेनेबली ग्रो नहीं कर पाओगे, राइट। इन लोगों को स्पेशली मैं बोलूंगा, अगर टीयर 2 छोटे शहरों से वो देखते हैं आगे लोग लोग कर रहे हैं और उनको करते हैं कोशिश करना, बट उनकी आवाज वो खुद ग्रो नहीं कर पाते, और जब वो करते हैं तो दे फाइंड देमसेल्व्स लिमिटेड टू अ लैंग्वेज बैरियर और अ कल्चर बैरियर और अ ज्योग्राफी बैरियर। दे डोंट हैव टेक्नोलॉजी, दे डोंट हैव टूल्स एंड स्टफ। अगर हम इन सबको ये दे दें, हमारा काम नहीं है लोगों को लॉन्ग फॉर्मेट करना या शॉर्ट फॉर्मेट करना, हमें काम है कि उनको अपनी आवाज पहचानने में मदद करना और उसको उसका बेस्ट एक्सप्रेशन देना और उसको ग्रो करना एल्गोरिदम के थ्रू, ब्रांडेड इंटीग्रेशंस के थ्रू, मोनेटाइजेशन के थ्रू, कम्युनिटी बिल्डिंग के थ्रू, क्रॉस प्रमोशन के थ्रू। ये बहुत सारे टेक्निक्स है, वो अगर हम लेके आएंगे तो यकीनन ऐसे बहुत लोग आएंगे जो ऐसा डिसरप्टिव कंटेंट लेके आए, जो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा लोग बैठ के देखें। So I also have to ask you one thing. India में copy paste का system है, which if one particular thing ends up working, people try to ape it. So हम्म, content maybe if you see like one particular thing is working. For example, a podcast is working. Now everyone wants to do podcast. If one particular segment is working, they want to ape that thing. हम्म, How a creator has to ensure because एक novelty factor होना चाहिए सर. Ultimately, as you said, हम Indians value देखते हैं. हम अगर 100 रुपए की भी कोई सामान लेंगे हमें उसमें 120 रुपए का वैल्यू चाहिए. दिस इज व्हाट वी एंड इन टूडेज टाइम व्हेन द अटेंशन स्पैन इज ऑलरेडी रिड्यूस व्हाट अ क्रिएटर कैन डू जो नोवेल्टी फैक्टर भी रहे और भीड़ में खोए ना. हम्म। सो क्या होता है ना, कोई भी प्लेटफॉर्म जब बढ़ता है तो वो पहले हद से ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत फास्ट बढ़ता है। फिर लोगों को ऐसा लगता है कि खत्म होने वाला है, क्योंकि वो कम होने लगता है। वो खत्म नहीं हो रहा, वो स्ट्रीमलाइन हो रहा है। जो लोग एप कर रहे हैं, जो लोग जस्ट फैड्स को फॉलो कर रहे हैं, वो दे डोंट गेट द वैल्यू आउट ऑफ इट, दे ड्रॉप आउट। द ओनली पीपल हु सर्वाइव आर people who are really passionate, who have trained themselves in planning their content and अडेप्टिंग टू द चेंजेस. adapting to the changes and have figured out their uniqueness in some manner, right? तो ऐसा लगता है कि कम हो जाए। क्रिएटिव इंडस्ट्री में आने का कोई बैरियर तो नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको कंटेंट क्रिएटर बनने के लिए कोई कहीं से डिग्री चाहिए या किसी फिल्म फैमिली से होना चाहिए। आप आपकी मर्जी है, आप कर सकते हो। कई कई लोग ऐसे होंगे जिनमें नहीं है टैलेंट, जो आ रहे हैं कि यार हाँ कुछ चल रहा है तो मैं भी वही करूंगा। दे विल क्विकली टायर इट। ऐसा नहीं है कि तुम बगैर पैसा कमाए कर सकते हो ऐसा बार बार, बट कई लोग को जरूरत है, अगर उनको गाइडेंस मिले, सो दे हैव द पोटेंशियल टू रियली डिसरप्ट एंड गेन अ लॉट ऑफ ऑडियंस एंड कनेक्ट। एट इन्फिनिटम, जिस कंपनी में मैंने ज्वाइन किया है, हमारा मिशन है ये कि हम ऐसे लोगों को ढूंढें, उनको परखें और उनको निखारें। That's amazing. So since we have seen you on roadies, we have seen you being the market disruptor. Right now, are you satisfied with the content on Indian television? The reason why I'm asking you, according to me, I believe Indian television has dipped a lot. पहले जो होता था, there was just, and there was when there was no OTT platform, nothing. We were glued to the television sets. We watch repeat also. We used to wait. Google करते थे कब आएगा repeat. But now Monday to Sunday format कर दिया है. Does Indian television has to take make sure that you come back. I'm not only just talking about Rudy's, I'm talking about any particular franchise. It can be any reality show. Like you did, you experimented with Comedy Nights Bachao. Like it's some way back in 2016. And Yeah. that time, like roasting, it was a new thing for Indian television. Like it was not something which we see I on was there. daily It basis. was new and interesting. Interesting. Yeah, colors did it. So that's amazing. So the if Indian television के पास right now वो content वो और वो चीजें हैं जो आपको खींच के वापस ला सकते हैं. मुझे हम्म. मुझे तो मुश्किल लगता है, क्योंकि देखिए, ये तो वही बात होगी, एक टाइम पे ना रेडियो इंडिया की लाइफलाइन होती थी। हम्म. हर कोई रेडियो में बिना का गीतमाला, ऐसे बहुत सारे समाचार, बहुत सारे इंटरव्यूज, सारा रेडियो के थ्रू होता था। इनफैक्ट स्पोर्ट्स क्रिकेट मैचेस भी रेडियो के थ्रू वो एक्सपीरियंस करते थे, राइट। फिर टेक्नोलॉजी ग्रो हुई, रेडियो आज भी चल रहा है, बट वो कहीं रेलेवेंट नहीं है। दे हैव नॉट इवॉल्व।
Evolve, yeah. राइट, उनके रहते रहते पॉडकास्ट आ गए और इतने आगे चले गए. दे शुड हैव बीन लीडर्स इन दैट. राइट. Hmm. सिमिलरली टेलीविजन, एक टाइम पे टीवी ही सब चीज था जैसे आपने बताया. राइट, बट अगेन टेक्नोलॉजी हैज ओवरटेकन इट. They have to reinvent. They cannot say ki what worked earlier will work again. We just have to double down Thank you for saying it. with Hmm. it, right? They have to evolve. In fact, right now, no TV channel is a TV channel alone. They have a OTT platform. Z के पास Z5 है, Sony के पास Tony Live, Live है, MTV is in the Star के पास Jio Hotstar, Colors, हाँ. yeah. So nobody looks at, even the industry isn't is looking at TV just as a placeholder कि यार कुछ रहे Hmm. कि. Hmm. But ultimately all audiences are migrating to online. ये तो होगा ही होगा. As TV as an industry, if it has to survive, it has to change. It can't do what it's been doing. Audiences have changed. Their Exactly. preferences have changed, and they consume content in different ways. Different ways, definitely. TV has to make a place for itself, but it Hmm. can't do it. It has to get digital on its side. It has to get other touch points on its side. Definitely. And this is also I keep on telling, like while we meeting other journalists, they keep on telling, अभी शायद हमारी ग्रैनी, हमारी ग्रैंडमा, दादी, नानी और मम्मी के पास रिमोट है, कुछ साल बाद रिमोट हमारे पास आएगा. Why should I watch television if it is not satisfying my taste buds? वही repetitive stuff हो रहा है. But Yeah. talking about content, like this is the 20th season of MTV Roadies, and like you have been an integral part. Like when we talk about Roadies, how can we not mention you and Raghu sir? What are do you still watch MTV Roadies? मतलब कभी कभार कोई glimpse देखते हो? Because I believe you have मेरा been मेरा और keeping टीवी skip. का रिश्ता नहीं है, कहीं नहीं है. ऐसा नहीं है. So what is that one thing right now you're watching and you would like to recommend to the viewers, readers, and audience of Film Beat? One thing. यार मेरा ना टेस्ट थोड़ा बदल चुका है. मेरा एक बेटा है, 19 साल का है. हम्म. हम्म. तो जनरली आई एम इंटरेस्टेड वो क्या देख रहा हम्म. है. राइट. वो देख रहा है, मतलब देयर इज इंटरेस्टेड इन सुपर हीरोज ऑब्वियसली. सो डेविड इज वेरी गुड ऑन नेटफ्लिक्स. द बॉयज ऑन amazon प्राइम, इनविंसिबल ऑन amazon प्राइम. और Invisible. Amazing. इनविंसिबल, या सो ऐसे वो देखता है तो मेरे को पता है उनके बारे में. मैं ज्यादा हम्म. आई डोंट नो. आई रियली लाइक द टीवीएफ शोज यार, पंचायत TVF. वगैरह. आई रियली लाइक इट. इवन अभी दुपहिया. आई लाइक द. दोपहिया on Prime Video. मुझे मुझे ना, आई एम a पैशनेट सपोर्टर ऑफ रूटेड इंडियन स्टोरीज. हम्म. जो हमारी आवाज, हमारा कल्चर, हमारा बोलचाल का तरीका, हमारे इडियोसिंक्रेसीज, जो वो हम शोकेस करें इन एन एंटरटेनिंग मैनर. इवन आप पाताल लोक देख लो. ऐसे ऐसे कुछ ओटीटीज हैं जो रियली इंडियन, ट्रूली इंडियन स्टोरीज विद कोटा फैक्ट्री film. इंडियन circumstances and ethos. That I really feel should be done more, and it should travel and dominate global culture. I really feel that. Definitely. So as I was talking about roadies, like one thing, like recently क्या हुआ था, तो because now today's audience they have become very चालाक. तो Reddit पे एक post viral जा रही थी where the script of apparently a reality show, I'm not going to name the reality show, that was leaked online. So do you believe the Indian reality shows, of course reality shows somehow we all know they are scripted, एक script रहती है जो follow करते हैं, but they're heavily scripted because audience they are very clever, they know कि वो फट से they will be identify कि नहीं this looks, because right now in Indian reality show also एक fake जो love angle का होता है ना सर, वो interest love angle वो track it is forcefully included. Not and every show, for example, Khatro Khiladi, it ends up becoming a big boss. Master Chef, which is currently running, it ends up becoming a big boss. So, with how the producers can draw the line to ensure, because Do you know I launched MasterChef in India? yeah, yeah, या सो वो शुरुआत अलग अलग करते हैं, बट वो आते हैं ऐसे ही. हाँ, hmm. सो योर क्वेश्चन वाज व्हाट? Are the reality shows scripted? यार देखो, होना तो नहीं चाहिए. Hmm. मुझे लगता नहीं है कि कोई स्क्रिप्ट कर भी सकता है उन्हें. पर Hmm. कई चीजें प्लान्ड होती हैं. अगर कोई होस्ट है तो उसका स्क्रिप्ट लिखा जाएगा. होस्ट क्या बोल रहा है उसको नहीं पता. जो ट्विस्ट सारे वो प्लान्ड होते हैं, Hmm. है ना. और जो कास्ट किया जाता है उनको किसी रीजन के लिए किया जाता है. राइट. सो ऑल दोज थिंग्स आर प्लान्ड. आई डोंट नो. आई हैव कम अक्रॉस सर्टेन पॉइंट्स once in Splitsvilla, I think season 7,
वेयर समबडी द गाय सिटिंग इन एमटीवी सेड नहीं नहीं मेरे को ना एक चाहिए कि एक लड़की को बाहर निकालेंगे तो एक लड़का कहेगा नहीं अगर वो नहीं है तो मैं भी चले जाऊंगा। हम्म। ठीक है। पहली बार सेलिब्रिटीज को लेके आए थे बाय द वे। तो एंड आई डिडंट लाइक दैट एट ऑल। आई डोंट मेक दैट काइंड ऑफ शोज। एनीवे हम कर रहे थे तो आई वाज नॉट देयर ऑन द शूट दैट डे। हो गया ये। दैट पर्सन वाज देयर और एक लड़की को निकाला और एक लड़के ने बोला मैं जा रहा हूँ निकल रहा हूँ। ये 2 साल से वो कह रहा था कि ये ऐसा करना है तो मैंने मना किया ऑब्वियसली। तो चले गया वो भी निकल गया। मैं जा रहा हूँ अगर ये लड़की ने मेरा सच्चा प्यार करके निकल गया। मैं कहा अच्छा मेरे को सुनाई दिया मैंने कहा ये तो अजीब सी बात है। देन कोई एक इवेंट हो रहा था शूट चल ही रहा था। जिस वजह से मैं बाहर गया था वो आदमी आया वो टेलीविजन स्टार और सेलिब्रिटी। सर मैं अब वापस कब जाऊंगा। मैं कहा वापस क्यों जाओगे। नहीं मेरे को बोला गया था बाहर निकलने के लिए ये जा रही है इसको निकालेंगे आप बाहर निकल जाना ऐसे। मैं कहा रियली आप नहीं आ रहे आपसे। आप बाहर हो आप गधे हो। ठीक है। आपको लग रहा है ये फिक्शन शो है ये नहीं है आप चले जाओ। Then I went and complained to MTV. Said this is, I told them this is the kind of shit that is happening. It cannot happen. I made that person apologize to the crew. So those things happen. Some people try. कि हर कोई कोई यहाँ पे रियलिटी शो की ट्रेनिंग ही नहीं है। मैंने आपको बताया था मैं रियलिटी शो का कोर्स मैंने क्रिएट किया है कर रहा हूँ। वो इसीलिए कर रहा हूँ ताकि लोग पहचाने कि अनस्क्रिप्टेड ड्रामा में क्या पावर है। पूरे दुनिया में अगर आप निकलेंगे ना मिपकॉम जाएंगे कांस या एशिया टेलीविजन फेस्टिवल जाएंगे आपको पूरी दुनिया के हर देश से बहुत सारे इनोवेटिव फॉर्मेट्स मिलेंगे लोग खरीदते होंगे। इंडिया खरीदता रहता है। इंडिया बेचता नहीं कभी। राइट। वो इसलिए क्योंकि हर जगह ट्रेनिंग है हमारे पास नहीं है। बिल्कुल। तो जब तक ट्रेनिंग नहीं होगी लोग अपना अपना दिमाग ही चलाएंगे। और एग्जैक्टली। उनमें से कई लोग होंगे जो स्क्रिप्ट करने की कोशिश करेंगे। Yeah. So one final question to you, and this is something I wanted to ask. हम्म। 2025 will mark the 15th anniversary of Tismar Khan. So और this is one film like it for us, like especially the millennials, it's like a guilty pleasure. आप तो तभी OTT पे देख सकते हो। तो we हम्म। used to उस समय कलर्स के पास उसके एक्सक्लूसिव टेलीकास्ट आई थे फिर स्टार गोल्ड के पास। एंड ट्रस्ट मी जब जब कलर्स ने दिखाया है टीवी पे जब जब स्टार गोल्ड ने दिखाया है the TRPs have shot up actually like it's a movie like you it's like a बस guilty pleasure. अभी रिसेंटली देयर वाज सम दिस थिंग कि यार उसको री रिलीज करो समथिंग लाइक दैट वाज हैपनिंग। Yeah. आई एम अवेयर ऑफ दैट। So, if any fond memories that you would like to share with us? ये हमारा पहला मूवी था। हाँ हम हाँ आपका गुस्सा था हाँ। पता नहीं था। और हमने पहले ही बड़े बड़े नामों के साथ काम किया। फराजी अक्षय ऑल दिस पीपल इवन अक्षय कुमार एंड खन्ना एंड कैटरीना। किचना। वेरी वेल रन सेट। इट वाज अ लॉट ऑफ फन। वी हैड अ लॉट ऑफ फन इनफैक्ट मैं अपने बेटे को लेके जाता था वो उस टाइम आई थिंक 4 साल का था या 3 साल का था। मैं उसको लेके जाता था ही रियली एंजॉयड इट सो आई हैव वेरी वेरी फॉन्ड मेमोरीज ऑफ दैट And we also have so many fond memories. Like as I mentioned, it's such a guilty pleasure. And फिल्म। शायद आजकल की जो यंगस्टर है वो नहीं समझेंगे लाइक बिकॉज वी यूज टू वेट की कलर चेक द टेलीकास्ट कब आएगा कलर्स पे स्केड्यूल देखते थे दैट टाइम बिकॉज देयर वाज नो ओटीटी हमारे लिए ओटीटी था नहीं। एंड फोन भी सर स्मार्टफोन्स नहीं होते थे आई एम टॉकिंग 2010 में जब 11 पे आई थी कलर्स पे आई थी। और फिर 12 13 फिर आई मीन नाउ इट इज व्हेन आई टॉक टू द एग्जीक्यूटिव ऑफ स्टार गोल्ड दे सेड हम रात को 8 बजे स्लॉट करते हैं द टीआरपीज गो हाई सो दिस इज द पावर ऑफ इंडियन फिल्म व्हिच वी राइट नाउ वी आर नॉट सीइंग दैट काइंड ऑफ कंटेंट। Thank you so much for your valuable time, sir. I hope this is not the last time we are speaking. Like डेफिनेटली। we hope we keep on interacting. I wish you all the very best. As I mentioned, you're all set to you're already a disruptor, and now you are taking one step ahead, all set to nurture talent. Because Indian people we are definitely talented. All we need is the right path. So I wish you all the best, sir. And thank you so थैंक much for your valuable time. यू। Thank यू you so much. लवली Thank you so इंटरेक्ट। much. Same here, sir.